Hello, good morning, FI BCom students. Hello, Good morning, ma'am. good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Let's start. So yesterday we were discussing about exit interview. I think day before last week. In the last week we were discussing about the exit interview. Now we will learn about more about uh, exit interview. The first point is plan the meeting. It's the smart idea to meet face to face for an exit interview. The employees appreciate this gesture. Generally, the result is more productive conservation. Another option is to give employees the written exit survey first and then follow up in the in-personal meeting. Some employees may prefer the chance to gather their thoughts in the advance, but in this way, the responses may be little less candid. The interview should be scheduled at the very end of the employee's time with the company and during the last 2 days of the employment. The employee can be explained as to why the exit interview is being done. The interviewer should prepare the question before conducting the interview. तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको whenever the exit interview is going to be held, whenever the person or the candidate is going to leave the company, at that time what they have to do means first of all they have given that written document or the written format of that exit interview. So the employee may prefer the chance to gather their thoughts in advance, so at least they can express their ideas in the advance. But here that whenever the interview should be scheduled at that time, the at that time before during the last 2 days of the employment, the employee can be explained as they why the exit interview is being done. So whenever the person is going to leave the company before few days, he is going to inform that why the exit interview is going to be held. Do you understand? Do you understand? Yes or no? Do you understand? Yes or no? Hello. Do you understand? मैम फिर से बताओ ना. प्लान द मीटिंग. इसमें क्या बताया गया है कि जब एग्जिट इंटरव्यू होता है, आवाज सुनाई दे रही है ना? आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ या ना? एम आई ऑडिबल? Yes. कि जब एग्जिट इंटरव्यू होता है तो उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो मैनेजर होता है या हम बोलते हैं कि जो बॉस वगैरह होता है या सेक्रेटरी होता है, तो सबसे पहले कि कोई भी इंसान जो वो जॉब छोड़ने वाला होता है, नौकरी छोड़ने वाला होता है, उसके पहले उसको एडवांस में रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये आप जॉब किस वजह से छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो. ओके. तो जो एम्प्लॉय होता है उसको क्या होता है, एक चांस मिल जाता है कि अपना थॉट शेयर करने के लिए, उसको एक चांस मिल जाता है. आगे की बात है कि दूसरी बात है कि जब इस टाइप का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसके 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी इस टाइम ये एग्जिट इंटरव्यू होने वाला है. तो दैट इंटरव्यूअर कि जो अभी जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो सेक्रेटरी है या हम बोलते हैं कि मैनेजर है, तो वो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखता है. जस्ट लास्ट टाइम पे आप जाओगे और क्वेश्चन पूछोगे तो ऐसा नहीं होने वाला. समझा? अभी समझा? यस और नो? डू अंडरस्टैंड? हेलो. Yes. इफ आई एम आस्किंग यू प्लीज रिप्लाई मी. यस Yes, आई. ma'am. हाँ. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू आस्क एंड व्हाट नॉट टू आस्क. तो इंटरव्यूअर के लिए कौन से सवाल पूछने चाहिए और कौन से नहीं पूछने चाहिए, यहाँ पे देखिए. द एम्प्लॉयर कैन आस्क सम ऑफ द क्वेश्चन अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी एग्जिट इंटरव्यू. This may be, or this way he can compare answer and look for the common responses. One can open the interview by telling employee he or she doesn't have all answer and any of your questions that is answer might be shared with the management. The question like why are you leaving? How could condition be improved? What would you do improve the situation that is causing to leave you? Could be asked. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जैसे हम टाइटल पढ़ते हैं वहीं पे हमको समझ में आ जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है तो उसके लिए
कौन से सवाल उसको पूछने चाहिए, कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन उसको पूछा जाएगा वो शायद मैनेजमेंट के साथ शेयर किया जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछे वाई आर यू लिविंग, आप क्यों छोड़ रहे हो। और दूसरा है कि अगर छोड़ रहे हो तो आप कैसे कंडीशन इम्प्रूव करोगे, आप अपने आप में क्या इम्प्रूव करोगे, इस प्रकार के या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Then, however, the employer needs to be careful to encourage the negativity in any of the following ways. First point है targeted question about specific people or issues. Then, while it's okay or to ask for the general feedback about the supervisor, and one should not insert one's opinion into the conversation. तो यहाँ पे क्या बताया कि टारगेटेड क्वेश्चन पूछे, सपोज फॉर एग्जांपल एक इंसान जॉब क्यों छोड़ देता है, शायद वहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति से उसको हेरेसमेंट होती हो या फिर पर्टिकुलर कोई उसका इश्यूज हो, तो उसकी वजह से वो जॉब छोड़ रहे हैं। तो उसको जो इंटरव्यूअर है तो उसको सिर्फ ओके करके उसको छोड़ देना है, नहीं अपना ओपिनियन उसमें ऐड करना है। फिर उसके बाद जो सुपरवाइजर के बारे में जनरल फीडबैक पूछा जाता है कि सुपरवाइजर के बारे में आप क्या बताएंगे, आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, या सोनू? Yes, ma'am. ओके, देन Yes, नेक्स्ट, ma'am. feed the office gossip and it never be constructive, won't be reliable information। कि गॉसिप नहीं होना चाहिए, इट नेवर बी कंस्ट्रक्टिव। जैसे र्यूमर्स होते हैं, फिर फॉर एग्जांपल गॉसिपिंग होता है, र्यूमर्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, उसको ज़्यादा हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। से एनीथिंग दैट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज ए स्लैंडर। हाँ, कि अगर आपके बारे में कोई गाली दे रहा है तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन गॉसिपिंग क्या कर रहे हैं या क्या बातें हो रही है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। द कन्वर्सेशन शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस, lay the groundwork that could look like a setting someone up for the termination. An employee's performance and status within the company should not be shared, especially with the departing employee। कि जब भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपको कोई गाली गलौज दे रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ जो व्यक्ति छोड़ने वाला है उसको गाली गलौज किया गया है तो वो छोड़ सकता है, वो बता सकता है। लेकिन ज्यादातर वहाँ पे क्या देखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, उसने किस तरह से काम किया। कि फॉर एग्जाम्पल वो ग्राउंड वर्क पे काम कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल वो उसमें टर्मिनेशन कैसे आएगा, और उसके परफॉर्मेंस और उसके स्टेटस को कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिपार्टिंग एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, या दूसरे लोग छोड़ने वाले तो उसके साथ इसकी बातें या उसकी बात इसके साथ नहीं की जा सकती। और एनी पर्सनल इश्यूज, उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये भी हम हाँ वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसका हम बोलते हैं कि डिस्कशन कहीं और नहीं कर सकते। समझा, समझा? Yes, ma'am. ओके, the next point is non-directional and free flow interviews. In the directed interview, the interviewer guides the discussion by asking the leading questions. In non-directional interviews, the interviewer listens instead of speaking. He never gives advice, remains neutral, and assures the interview that all said will be treated in the strictest confidence. The interviews for the graduates are usually non-directional इंटरव्यू। द डायरेक्ट इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर डिस्कस करता है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेता है उसको गाइडेंस पे ले सकता मीन्स जो इंटरव्यूअर होता है उसको सजेस्ट कभी कर सकता है, सजेशन दे सकता है कि उसको बारी बारी क्वेश्चन पूछ के। लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर इंटरव्यूअर का काम क्या होता है, नॉट टू स्पीक बट जस्ट ओनली लिसनिंग, उसका सुनने का काम होता है, वो न्यूट्रल रहता है, उसको वो एडवाइस नहीं दे सकता। और ऑल द टाइम कि मुझे ये इंटरव्यू लेना है तो उसका स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस में, और कोई मुझे सलाह वगैरह या एडवाइस नहीं देना है। क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं बोलते बोलते हम ऐसा बोल देते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा वैसा बिल्कुल भी उसको नहीं करना है। तो जो हम ग्रेडियंस इंटरव्यू की जब बात करते हैं तो वो नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू में आता है। समझा, समझा?
यस और नो? मैम फिर से बताइए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपली इंटरव्यू लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है उसको, ओके। ग्रेवियंस मतलब क्या, कंप्लेन। तो कंप्लेन जो इंटरव्यू लिया जाता है तो या एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। उसकी कोई दिशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति आए हैं अपने प्रॉब्लम सुनाने आए हैं, कंप्लेन करने आए हैं, तो उसको सुनने की जिम्मेदारी किसकी है, इंटरव्यूअर के, ना कि उसको एडवाइस देने की। समझ में आया? तो इंटरव्यूअर का यस काम मैम। क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेते हैं उसका काम क्या होता है कि ध्यान से शांति से सुने, ना उसको एडवाइस देनी है, ना उसको कुछ बोलना है, सिर्फ सुनना है, न्यूट्रल रहना है। हाँ, न्यूट्रल रहना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। समझा? यस मैम। समझा? Yes, ma'am. The next point is free flow interview is another type of non-directional interview. In this type of interview, the interview is given an existing problem and or question. He is then asked to express his views frankly into the tape recorder that is placed at the disposal. At the at, as this interview is not interrupted, he has a chance to speak out. Much of what he says might be irrelevant and later the tape requires to be studied carefully. This analysis will be set of tone for the future relationship. अभी फ्री फ्लो इंटरव्यू में क्या बताया जाता है कि वो भी एक वन टाइप ऑफ नॉन डायरेक्शनल इंटरव्यू. In this interview, what happens that whatever the question should be asked or whatever the problems said by or uttered by the candidate, it should be recorded in the tape record. And after onwards, whenever the interviewer listen this tape record again and again, at time he gather the data and he gather the relevant data. फॉर एग्जाम्पल उसका बोलने का टोन कैसा है, फिर उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, तो ये उसके टैप रिकॉर्ड में जो उसने बोला है वो सब कुछ टैप रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसको बारी बारी सुना जाता है, उसको सुना जाता है। तो उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा या उसका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा होगा, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ यस में मैम। आया? यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन और Yes, ma'am. induction interview. An orientation interview is usually given by the supervisor to his subordinate when he reports for the work on the first day. At this interview, the new recruit is welcome to the organization. इनंडेशन इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई नया इंसान यहाँ पे दिखा देता है आपको, सर ये नया इंसान, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये नया इंसान है, समझ में आ रहा है? ये उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो the new person will be welcomed and the new person is recruited. Then given the details of job and he is expected to do inform about his training program. कि उसको काम क्या करना है, किस तरह से करना है या उसको किस तरह से ट्रेनिंग देना है, ये बात वहाँ पे समझाई जाती है। After the interview, new recruit is usually taken around the workshop or the department and introduce his fellow employees. कि उसको डिपार्टमेंट में फिर डिपार्टमेंट या वर्कशॉप में उसको विजिट करवाया जाता है और बाकी के डिपार्टमेंट के मीन्स लोगों के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दिस इज द सिंपल थिंग, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे। The next point is interview for the reprimand. Sometimes an employee is called for an interview by his supervisor so that he may be reprimanded or scolded for his poor performance. At such interviews, the interviewer should try to find out the causes for the poor performance instead of merely scolding or indulging in the destructive criticism. यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है? Can you see the picture properly? यस मैम। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू फॉर रेप्रीमेंट कब लिया जाता है कि कोई इंसान या कोई कैंडिडेट जब अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो बॉस या हम बोलते हैं कि मैनेजर उसको इस टाइप के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, बुलाते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस क्यों
इतना बकवास दे रहे हैं या उसका परफॉर्मेंस इतना पुअर क्यों है। तो जब हम डांट खाने जाते हैं, कि डांट हम कब खाते हैं बताइए मुझे, हमें कोई डांटता कब है, कब डांटता है हमें? हम गलती जब हम गलतियां करते हैं तब हमें डांट मिलती है। जब हमारा परफॉर्मेंस कम होता है, पुअर होता है, कोई भी बात नहीं, तब हमको डांट मिलती है। ओके। लेकिन हाँ, किसी को डांटने की ही आदत है, हाँ करेगा, आप अच्छा करो या बुरा करो, क्योंकि उसका नेचर है, वो अलग बात है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसकी वजह से उसको डाटा दे रहे हैं। जहाँ पे आपको समझ में आने लगे, आपको मेंटली वहाँ पे स्टेबल, हाँ अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी या मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे डांट मिलने वाली है। अगर आपने गलती किया है तो आप अपना माइंड सेट करके रखिए, मुझे डांट खानी है और उसके लिए मैं रेडी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके लिए मैं रेडी होना चाहिए। यस और नो? यस मैम। हाँ। द पर्पज ऑफ द इंटरव्यू should be made should be to make the employee work Yes, better in ma'am. the future। कि उसको क्यों डाटा देते हैं, रेप्रीमेंट इंटरव्यू भी ले देते हैं कि उसका फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। बिफोर कॉलिंग द वर्कर फॉर रेप्रीमेंट इंटरव्यू, द सुपरवाइजर मस्ट बी श्योर इन हिज माइंड द वर्कर डिजर्व टू बी रेप्रीमेंडेड। अगर उसको बुलाया जाता है तो आपको ध्यान मीन्स इंटरव्यूअर को ध्यान रखना चाहिए कि सही में वो जो वर्कर है वो रेप्रीमेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आपको का गुस्सा निकालना है या आपकी दुश्मनी है तो आप किसी को भी बुलाएंगे उसको डांट देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ। यस मैम। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब ऑफिस होता है तो बॉस, सेक्रेटरी, ऐसे बहुत से कैरेक्टर होते हैं, एम्प्लॉय ही सब सारे कैरेक्टर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का फॉर एग्जांपल बॉस के साथ या ज़्यादा अच्छा रिलेशन है तो बॉस हमेशा उसके सुन के दूसरों को डांटेगा, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत गलत? है। गलत है। वो अपने एक्सपीरियंस से, कि फॉर एग्जांपल उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस है कि जिसकी गलत। बॉस के साथ बनती है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। बॉस का हर एक एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए, नहीं कि बायस मीन्स अनबायस ओपिनियन देना चाहिए, अनबायस बिहेवियर करना चाहिए। समझ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई गलती करे और Ma'am. कोई गलती करे, डांट किसी और को लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे ये दिया गया है, सच इंटरव्यू मस्ट ऑलवेज बी कंडक्टेड इन द प्राइवेट। इट वुड बी demoralize the worker if he is reprimanded and humiliated in the front of associates। कि अगर चार लोगों के सामने उसका अपमान किया गया तो किसी को भी, हर व्यक्ति को चार लोगों के बीच में डांटा गया तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नो मैम, नहीं। नहीं लगता है। तो जब भी आपको डांट मिलती है या फॉर एग्जांपल कि जब भी डांट लगने वाली है तो वो पर्सनल होना चाहिए, मीन्स पर्सनल रूम में आके होना चाहिए। ओके। पर इसके बारे में फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड टीचर, तो जब भी आप क्लास में गलतियां करते हैं तो आपको क्लास में वहीं पे डांटा जाता है। इसका ये डजंट मीन कि हम आपको इंसल्ट चार लोगों के बीच में करना है। लेकिन आप सब मिलके परेशान कर रहे हैं तो डांट सबको लगने वाली है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर पढ़ाई को लेके सबको डांट एक जैसी मिलती है कि नहीं मिलती है? पढ़ाई को लेके यस मैम। सबको एक, अगर लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, ओके, पर्सनल कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हो गए, तो आपको सबके सामने नहीं डांटा जाएगा, आपको पर्सनली बुलाया जाएगा कि आप मुझे आके मिलो, या किसी सभी टीचर्स को आके मिलो तो क्या प्रॉब्लम है। समझ में आया? अगर आपका कुछ पर्सनल रहा होगा तो आपको सबके सामने नहीं डांटा जाएगा। समझा? समझा? यस मैम। दैट इज यस द मैम। थिंग। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, clinical interview. When the post which is filled to be filled requires a person who is emotionally stable and mentally alert, in addition is being physically fit, it is usual to send applicant for the test and interview by the qualified psychologist after the formal interview is over। अभी क्लिनिकल इंटरव्यू क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल पोस्ट होती है जहाँ पे कि हम बोलते हैं कि
फिजिकल फिट या फिट पर्सन किसको बोलते हैं? फिट पर्सन किसको बोलते हैं? जो फिजिकली फिट है उसको फिट बोलते हैं। फिजिकली तो वो फिट है, लेकिन उसका जैसे हम बोलते हैं कि फिट पर्सन किसको बोलते हैं हम लोग, उसका डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा? मेंटली भी फिट होना चाहिए। मेंटली भी इंसान फिट होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ना कि हाँ फॉर एग्जांपल बात बात में रो दे। और हम बोलते हैं कि जो डिसीजन लेना है, हाँ बात बात में जो इंसान रो देता है, या फॉर एग्जांपल वो ज्यादा हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि ज्यादा इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्लिनिकल इंटरव्यू बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर खून से डरने लगे तो वो ऑपरेशन कर पाएगा? ऑपरेशन नो कर मैम। पाएगा? नहीं। फॉर एग्जांपल हमें जरा सा भी खून दिखा देते तो हमें कुछ हम में से कुछ को चक्कर आ जाती है, या हम वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हमने ये ऐसा देखा नहीं है। जितना शरीर हमारा ऊपर से अच्छा दिखता है, इतना ही अंदर से कैसा है, भद्दा है, गंदा है, पूरा मांस से भरा हुआ है। लेकिन उसको फिर झेलने की ताकत, कि जो फॉर एग्जांपल डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उसको झेलने की ताकत उसमें उनमें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मेंटली इतना स्टेबल होना चाहिए, इमोशनली इतना स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिनिकल इंटरव्यू कब लिए जाते हैं? फॉर एग्जांपल ऐसे इंटरव्यू जब लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लिए जाते हैं, कि उसके लिए पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अपनी साइड साइकोलॉजिस्ट, हम बोलते हैं कि मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक उसको बोलते हैं, उसके पास उनको भेजा जाता है। उसका इंटरव्यू होने के मीन्स इंटरव्यू होने के बाद उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। So this practice or this has become accepted practice in the large business organization and recruiting top managerial staff. कि टॉप मैनेजर स्टाफ के लिए ये इस टाइप की क्लिनिकल इंटरव्यू दिए जाते हैं कि वो मेंटली कितना स्टेबल है, इमोशनली कितना स्टेबल है, और उसको चेक करवाया जाता है कि जो इंसान मेंटली स्टेबल है, या हम बोलते हैं कि उसको हाँ इमोशनली स्टेबल है, वही सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। Am I right? Am I right? यस। यस मैम। समझा? Okay. यस मैम। The next point is on the job interview. In an organization, the management may find it necessary to hold the severe interviews in the course of the day. They may be called on the job interview and include interviews for the purpose obtaining and exchanging information, problem solving, decision making and counseling. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारे इंटरव्यू बहुत सारे इंटरव्यू में बहुत सारे कोर्सेज उसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले आता है, देखिए कि ऑब्टेनिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। बारी बारी एक ही क्वेश्चन सबको नहीं पूछ सकते, अलग होना चाहिए। दूसरा है कि दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग उसका ठीक होना चाहिए और काउंसलिंग भी उसका ठीक होना चाहिए। इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज द इंटरव्यू द मैनेजर may call the subordinate and the question ask the question him or to obtain information about his work or some problems connected with his particular job. तो जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो मैनेजर क्या कर सकता है? तो मैनेजर उसको सबोर्डिनेट को बुला सकता है और उसके बारे में उसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके वर्क के बारे में और उसका जो जॉब है, तो पर्टिकुलर वो जॉब के लिए उसका क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन उसको पूछा जाता है। इन द डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू द मैनेजर में कॉल वन और मोर the manager may call one or more problem solving and counseling interviews. Uh, वही है ना? हाँ, one or more person of his immediate subordinate with their help arrive at the some decision. अगर उसको डिसीजन लेना है तो मैनेजर को, तो वो क्या करेगा? अपने सबॉर्डिनेट फॉर एग्जांपल जो उसके आसपास जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाएगा, फिर वो डिसीजन लेगा।
The problem solving and counseling interviews are take the form of manager calling and inviting employee and discussing the latest on the job or another problem and giving him advice. कि जब हम काउंसलिंग करते हैं या किसी व्यक्ति का काउंसलिंग करते हैं या जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो वहाँ पे उसको एम्प्लॉय को बुलाया जाता है कि जैसे अभी हमने देखा कि एग्जिट इंटरव्यू है, हाँ वैसे, और उसको बुलाया जाता है और उसको एडवाइस किया जाता है। समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point Yes, is ma'am. group interview. Group interview किसको बोलते हैं? In the group interview, the group of the people is brought together for the purpose exchanging views to the manager, listen from time to time, may interrupt to ask the question or to obtain more information. तो ग्रुप इंटरव्यू तो जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है जैसे ग्रुप इंटरव्यू होता है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा बुलाया जाता है और जैसे होता है कि मैनेजर सुन रहा है टाइम टू टाइम वो इंटरप्ट कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा है मेंटेन कर रहा है द ग्रुप ऑफ द पीपल में कंसिस्ट आउटसाइड लाइक द एक्सपर्ट कस्टमर्स डीलर एंड मे बी द मिक्स ग्रुप कि ग्रुप ऑफ द पीपल में कौन हो सकते हैं कि एक्सपर्ट हो सकते हैं कस्टमर हो सकते हैं डीलर हो सकते हैं और सभी इस टाइप के जो हम बोलते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं तो सभी इस टाइप के लोग वहाँ पे ग्रुप इंटरव्यू में बैठे होते हैं when such group is formed for a long period of the time call for the interview at the periodic intervals is known as panel कि ये जब इंटरव्यू चलता है तो वो बड़े लंबे समय तक चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पैनल इंटरव्यू बोलते हैं द पैनल में बी कॉल्ड बाय द पोस्ट और इन अ पर्सन कि उसके लिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ये पैनल इंटरव्यू दिया जाता है समझ में आ रहा है Yes, ma'am. ओके ध्यान देंगे तो जल्दी से समझ Yes, में आएगा ma'am. और आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको हिंट दे के रखती हूँ कि क्वेश्चन आपकी बुक में से ही पूछे जाएंगे और जो डिटेल में पूछे जाएंगे जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक में से ही सब कुछ मिलेगा that group interviews are becoming increasing popular for selecting candidates for the job or for management school कि ग्रुप इंटरव्यू कब लिया जाता है कि सिलेक्शन कब होता है कि फॉर एग्जांपल जॉब के लिए या हम बोलते हैं मैनेजमेंट स्कूल के लिए ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है द कैंडिडेट्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 इन नंबर आर मेड टू इंटरेक्ट एंड एग्जिबिट देयर स्किल्स कि जो कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके ज़्यादातर कितने होते हैं 10 या 20 होते हैं और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो जैसे हमने अभी देखा कि वो जो पैनल इंटरव्यू होता है वो लंबे समय तक चलता है जिसकी वजह से वो जो कैंडिडेट हैं वो अपने स्किल को एग्जिबिट कर सके देयर इज नो लीडर एंड ऑफर नो टॉपिक फॉर द डिस्कशन द सिलेक्टर सिट्स एट द साइलेंट ऑब्जर्वर एंड इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिसिपेंट कि जो सिलेक्टर्स होते हैं वो साइलेंटली वहाँ पर बैठे होते हैं और उसके जो हम बोलते हैं कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो किस तरह से बैठते हैं वो पूरा का पूरा वो ऑब्जर्व करते हैं द ग्रुप डिस्कशन यूजुअली बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बाय देमसेल्फ कि उसमें सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स होता है वो अपना एक इंट्रोडक्शन देता है उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है Then whereas on the one hand, the interviewing technique allows the selector to spot the natural leaders. Whereas on the one hand, this interview technique allows the selector to spot the natural leaders. On the other hand, it often turns into the verbal free for all with the most aggressive candidates stealing the show with more intelligent ones being pulled into the silence. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब इंटरव्यूइंग टेक्निक हम बोलते हैं कि जो इंटरव्यू टेक्निक लिया जाता है जो सिलेक्टर उसको चूज करते हैं टू स्पॉट द नेचुरल लीडर्स और एक तो फॉर एग्जांपल जैसे स्पोर्ट्स में होता है या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए होता है तो उसमें एक तो नेचुरल लीडर लिया जाता है
और दूसरा होता है कि वर्बल मीन्स उसका वर्बल कम्युनिकेशन सबके साथ कैसा हो, aggressive, I think aggressive हो कि most aggressive candidates feeling the show with the more intelligence ones being forced into the silence कि जो है उसमें, हाँ सॉरी, इसमें ऐसा बताया गया है कि उसका दूसरे साइड में कि उसका जो हम बोलते हैं कि वर्बल जो कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कैंडिडेट का, वो फ्री फ्लो होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि वो उसको ही सब कुछ आता है और दूसरों को कुछ नहीं आता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point is drawback for the interview. अब उसकी drawback क्या है? The most interview fails as a means of communication on account of three reasons. The first point is interviewer does not prepare properly, does not conduct the interview with the skill. कि इंटरव्यू जब फेल होता है या ठीक से हम जो बोलते हैं प्रॉपर इंटरव्यू किस तरह से लेना चाहिए, तो कभी कभी ड्रॉबैक रह जाती है इंटरव्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर को क्या करना चाहिए, हम बोलते हैं कि उसको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने चाहिए और उसके हिसाब से इंटरव्यूअर के हिसाब से उसको क्वेश्चन पूछने चाहिए। द पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द इंटरव्यूअर डू नॉट अलाउ हिम टू मेक द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। उसमें इंटरव्यूअर की पसंदगी नापसंदगी कैंडिडेट चूज करने में नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस लाइक्स एंड डिसलाइक्स मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, educational background, or even the behavior of the candidate, like his posture, the way of talking. तो किस तरह से उसको चूज होना चाहिए, किस तरह से चूज करने की, हाँ उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, वो किस कास्ट का है, उसका रिलीजन कौन सा है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो किस तरह से बात करते हैं, उसी हिसाब से लेना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि नहीं होता है। An interview, the stress is usually on making candidates to speak up, while the job may call for is a good listener. For instance, a candidate who speaks out impressively may make a good salesman, but not the good bookkeeper or the private secretary. तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट पे प्रेशर होता ही है कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। लेकिन जब उसको, हाँ जब उसको बोला जाता है कि यू आर अ गुड लिसनर, तो उसको जब मिल जाते हैं तो वो गुड लिसनर की तरह उसको देखा जाता है। लेकिन जब कैंडिडेट जितना बोलता है इम्प्रेसिवली, तो इट डजंट मीन वो गुड सेल्समैन बन सकता है, लेकिन गुड बुक कीपर या प्राइवेट सेक्रेटरी वो नहीं बन सकता। समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया आपको। यहाँ पे देखिए, मिस्टर घोष वॉज रिटायर्ड ICS officer who was appointed chief personnel officer by the large industrial company in Calcutta. Having received his own education in England, he believed that all persons holding degrees from Indian universities are not properly educated. This attitude resulted in his recruiting only foreign return applicants for the top executive post, while Indian educated applicants were given subordinated posts in spite of their superior क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है कि अगर कोई इंसान मिस्टर घोष जो ICA ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको चीफ पर्सनल ऑफिसर की तरह पे इंडस्ट्रियल कंपनी में कलकत्ता में उनको लिया गया है, तो वो क्या सोचते हैं कि उनका जो पूरा डिग्री है उन्होंने एजुकेशन कहाँ से किया है, इंग्लैंड से किया है। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि जितने भी ग्रेजुएट हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं बाकी के, जिसने इंडियन यूनिवर्सिटी से सब कुछ किया है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की जो हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी वही ठीक है। तो ये जो सोच होती है, ये जो एटीट्यूड होता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उनकी रिक्रूटमेंट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ओनली फॉरेन रिटर्न है। हाँ, टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो फॉरेन रिटर्न है, इसकी वजह से उनको लिया जाता है। और बाकी के जो एप्लीकेंट हैं, बाकी के जो कैंडिडेट हैं, कि उनके पास सुपीरियर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उनको सबोर्डिनेट पोस्ट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं,
bias of interviewer, bias decision, bias decision हम बोलते हैं एक तरफा, या फिर हम बोलते हैं कि हाँ रिश्वत टाइप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Then next point is group discussion. When the set of persons are brought together to express their opinion and to allocated subjects, leading to the subsequent exchange of the views, it is said that they are doing the group discussion. Group discussion हम किसको बोलते हैं जनरली? ग्रुप डिस्कशन किसको बोलते हैं? ग्रुप में सब होते हैं और अपने अपने ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन तो देते हैं, पर कौन से सब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। यस मैम। यस मैम। डिस्कशन कहते हैं कौन से टॉपिक होते हैं ज्यादातर? कौन से टॉपिक होते हैं? एक टॉपिक पे अलग अलग लोगों की राय कितनी है? कौन सी राय है उसको डिस्कस किया जाता है ना। एक ही टॉपिक पे अलग अलग लोगों की राय कौन सी है उसको डिस्कस किया जाता है ना। यस और नो? Yes, ma'am. उसको हम ग्रुप Yes, डिस्कशन ma'am. बोलते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जब लड़कियां बैठती है तो उनका टॉपिक अलग होता है, जब लड़के बैठते हैं तो उनके टॉपिक अलग होते हैं। जब हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन बैठते हैं तो उनके टॉपिक अलग होते हैं। ग्रुप डिस्कशन के अलग अलग टॉपिक होते हैं जिसमें हम अपना व्यूज दे सकते हैं, तो उसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो अभी देखते हैं आगे कि रीजन फॉर होल्डिंग ग्रुप डिस्कशन, इसको किस तरह से हैंडल कर दिया जाए। So first point is as a part of recruitment process, when the last number of candidates apply, the group discussion are held for assessing their skill and eliminating them. कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम बोलते कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इकट्ठा होते हैं या जॉब के लिए इकट्ठा होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनको उनकी स्किल को देखा जाता है और बाकी का उनको फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो वर्क है उसको इग्नोर किया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then next point is यस मैम। brainstorming. The objective of brainstorming session is to produce the quantity of ideas, input, and expectation that something new and creating will come up. कि for brainstorming, कि for example वहाँ पे कैसे नए आइडिया को उसको स्वीकारा जाता है, कौन से नए आइडियाज आएंगे, या फॉर एग्जांपल जब इंटरव्यूज होते हैं या एप्लीकेंट आते हैं या कैंडिडेट आते हैं तो उनके पास नए नए आइडिया कौन से हैं उसके हिसाब से उनके पास मीन्स इंटरव्यूअर कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि सपोज उनके पास कुछ नए आइडिया है तो कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे। समझ में आ रहा है? नया और क्रिएटिव। Yes, ma'am. ओके फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. कोई भी चीज जब फॉर एग्जांपल जब मार्केट में वो नई आती है तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है। ओके लेकिन कुछ साल के बाद वो क्या हो जाती है, कुछ साल के बाद क्या होती है वो पुरानी हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? Yes, ma'am. Yes. ओके यस मैम। हाँ फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जो हम पानी की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल जो सिंपल है फॉर एग्जांपल उसका स्टैंडिंग पोजीशन है लेकिन उसका शेप थोड़ा सा अलग हो तो अगर आप चीजें खरीदने गए उसका शेप थोड़ा सा अलग हो तो बड़ा वाला हो कि जैसे फॉर एग्जांपल कैन टाइप हो या शेप उसका अच्छा हो तो आपको वो पसंद आएगा ना, पसंद आएगा कि Yes, नहीं ma'am. आएगा? हाँ Yes, फॉर ma'am. एग्जांपल यूटेंसिल जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं ओके कि बर्तन में वैरायटी हो, फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स में वैरायटी हो, कोई भी चीज में प्रोडक्ट में वैरायटी हो, न्यू